CLAT is a passage-based paper, we know that. But what about the passages that comes in the long words? And that means whenever there are long passages, 400 to 500, 600 words, how to tackle those passages? Because वो हमारा time भी खाते हैं, questions भी उनके थोड़े difficult होते हैं, and that is where most of the students have been asking me this one particular question, that ma'am, how to handle the long passages, how to tackle long English passages in a limited time, because at last you will not get extra time for the extra long passages. You have to solve them within 120 minutes. So hello CLAT aspirants, welcome back to iConta's CLAT YouTube channel. और आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ how to tackle long English passages in the limited time, ताकि आप 120 minutes में 120 questions को solve करने के साथ साथ उन long questions को भी tackle कर पाओ within that time frame, so that you have a good idea that if this one particular thing, अगर आपको एक long passage prima facie दिखा तो आप उसको mentally prepare करके किस तरीके से handle करोगे, that is something that we are gonna see in this one particular video. Stay tuned till the end so that you have a very nice strategy that if you get a passage somewhere between 400 to 600 words, how will you tackle that one particular passage? And this is something, the usual length of the CLAT passages, वो आजकल बहुत एक reading heavy paper बना रहे हैं. So I'm 100% sure that you will be very much interested to know that how you will tackle these passages, right? So let's dive into it. Why a two pass works, right? Long passages overload working memory if you try to remember everything. Long passages में सबसे बड़ी problem यही होती है कि आप सब कुछ याद करने की कोशिश करते हो, and that is why I have divided this strategy into a two pass thing. The two pass splits the job. First map the passage, right? आपने एक passage देखा, आप उसको map कर लो, आपने उसमें कहाँ क्या देखा था, what, why, right? First strategy would be mapping the passage. मैप पे जैसे हम लोकेट करते हैं चीजें, वैसे ही आप अंडरलाइन करके उनको मैप कर लोगे. What it says, how it's built, author stance, and then target the questions, right? जो मैंने आपको बताया what, why, author क्या कहना चाहता है, that is something that will be your first pass. This saves times and reduces rereading, right? आपका time reduce होगा, आपको पता होगा कहाँ आपने passage में कितना क्या पढ़ा था, and that is how you will save your time. You will not have to read the passage again. Time allocation, practical targets you can hit under exam pressure. Adapt these to your tests. These are flexible benchmarks. Short passage, 200 to 300 words का अगर passage है, plus 4 to 5 questions. Spend just 6 to 8 minutes in that particular passage. Read, skim 1 to 1.5 minutes. Question 4 to 6 minutes. Long passage, 400 to 700 words, plus 5 to 7 questions. Total 9 to 12 minutes. Read to skim 2-3 minutes for the passage, and questions 7 to 9 minutes. If the exam average is 60 seconds per question overall, expect RC questions to take 90 seconds, because you know that you have to find out what author is about to tell you. आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. आपको आरसीज में 90 सेकंड्स पर क्वेश्चन लगने वाले हैं. यू कैन नॉट सॉल्व देम विद इन 60 सेकंड्स ईच बिकॉज ऑफ रीडिंग टाइम. यूज टू पास टू स्टे विद इन दिस, राइट? 90 सेकंड्स के अंदर भी अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, देन यू आर गुड टू गो. Exact two pass routine, use this every time. First pass, build the map, as I already told you. Fast 60 to 180 seconds depending upon the length. आपने जैसे ही पैसेज देखा, उसकी मैपिंग करना शुरू कर दो. व्हाट, व्हाई, रीजन, ऑथर क्या कहना चाहता है, ऑथर की टोन ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक है, एवरीथिंग, राइट? रीड द टाइटल इफ एनी एंड द फर्स्ट पैराग्राफ फुल्ली. फर्स्ट पैराग्राफ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पैसेज में क्या बताना चाह रहे हैं, एंड व्हाट आर दे अबाउट टू टेल यू फर्दर फॉर दैट वन पर्टिकुलर टॉपिक. स्किम मिडिल पैराग्राफ्स लुकिंग ओनली फॉर टॉपिक सेंटेंसेस. फर्स्ट एंड लास्ट लाइन्स, कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स, एग्जाम्पल्स, नंबर्स, नेम्स. डोंट सब वोकलाइज एवरी सेंटेंस. आपका पूरा पैसेज कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है. जो आपके बीच के पैराग्राफ्स हैं, आपको उनको सिर्फ स्किम थ्रू करना है. उस पर्टिकुलर स्किम थ्रू में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और आपको बस उनको हाईलाइट करना है. रीड द फाइनल पैराग्राफ फुल्ली. फर्स्ट पैराग्राफ और फाइनल पैराग्राफ आपको पूरा पूरा पढ़ना है उस, क्योंकि लास्ट पैराग्राफ में ही आपको ऑथर का कंक्लूजन पता चलता है कि ऑथर इस पैसेज से कहना क्या चाहता है. इट ऑफन कंटेन्स कंक्लूजन, टेक अवे. इन द मार्जिन और मेंटली नोट वन लाइनर जिस्ट, टोन, स्ट्रक्चर टैग्स, की टर्म्स, डेट्स, नेम्स, प्रॉब्लम्स. आप स्ट्रक्चर टैग्स में से टैग्स दे सकते हो. P1 प्रॉब्लम, P2 एविडेंस, P3 काउंटर, P4 कंक्लूजन. आप ऐसे मेंटली नोट डाउन कर सकते हो अपने पैसेज में, राइट?
Second pass is answer the questions. Answer the questions targeted 60 to 90 seconds per question. Read the question carefully, identify what kind of question, main idea, inference, tone, detail, vocab. सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपको यही पहचानना है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है. कभी कभी ट्विस्ट एंड टर्न से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू सी दैट व्हाट इज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड व्हाट डू आई नीड टू फाइंड इन द पैसेज. क्योंकि जो आपने पैसेज मैपिंग करी थी उसी में आपको पता चल जाएगा कि इस पैराग्राफ में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है. इफ इट इज अ डिटेल क्वेश्चन मैप टू द पैराग्राफ यू नोटेड एंड स्कैन, यू विल फाइंड इट फास्ट. एज आई ऑलरेडी मेंशन, जब आप मैपिंग कर लेते हो तो आपको मैपिंग से पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने सेकंड पैराग्राफ में देखा था या थर्ड पैराग्राफ में देखा था. दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व इट fast. If it's inference implicit, use your one line gist and structure. Ask what must be true. क्या आपने जब पैसेज को पढ़ा तो आपको क्या पता चला कि ये तो 100% ट्रू होगा ही, क्योंकि वही तो इन्फ्रेंस होता है, वो आपका ही इन्फ्रेंस जानना चाह रहे हैं. व्हाट फॉलोज, प्रिडिक्ट द आंसर इन 3 to 6 वर्ड्स बिफोर लुकिंग एट द ऑप्शंस. ऑप्शंस देखने से पहले ही अपने दिमाग में एक आंसर बना लो कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है. अगर मेरे पास ऑप्शंस नहीं होते, अगर ये एक सब्जेक्टिव पेपर होता तो शायद इसका आंसर मैं ये लिख के आता. और जब वो आपको इंट्यूशन आ गई कि दैट दिस इज द करेक्ट आंसर इन योर हेड, और व्हेन यू फाइंड दैट सिमिलर ऑप्शन इन योर ऑप्शंस, see how your confidence boosts up, and that will be only your correct answer. Quickly eliminate wrong options by scope, extreme words, or irrelevance. Pick the option that matches your prediction. I always say there will be 2 options that will be 100% eliminated. सिर्फ 2 ही ऑप्शंस का खेल है जो आपको चूज करना है द राइट आंसर. राइट? Active reading annotations, fast marks that save time. Use tiny marks. Underline the conclusion. Conclusion को आप ये mark दे सकते हो, right? This is the mark that you can give for conclusion. Put a plus for evidence, facts, and a star for examples, and a tiddle for contrast qualifier. आप अपने लिए एक साइन लिस्ट बना के चले जाओ कि मैं इस तरीके से साइन लिस्ट पे ये साइंस मेरे को ये बताएंगे कि ये मेरा कंक्लूजन है, यहाँ पर प्लस का साइन मेरे को एविडेंस बता रहा है, स्टार मार्क मुझे एग्जाम्पल्स दे रहा है, टिडल मुझे कॉन्ट्रास्ट या क्वालिफाइज दे रहा है. राइट अ शॉर्ट टैग एट द टॉप ऑफ मार्जिन, जस्ट पॉलिसी हार्म्स एक्स, और टोन स्केप्टिकल. सर्कल नंबर्स, नेम्स, डेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो चीजें आपको डेट्स और ये सारी चीजें पैसेज में आपको लगता है कि आगे जाके क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, उनको सर्कल कर लो. दे आर ऑफन क्वेश्चन फॉर्डर. मेक्स मार्क्स स्मॉल सो दैट दे डू नॉट स्लो यू डाउन. राइट? मार्क्स जो होते हैं, मैं हमेशा बताती हूँ स्टूडेंट्स को, whenever you are attempting any sort of paper, not just the law entrance examination, whenever you put these small marks, they take your attention that yes, this is the one thing here, and that actually saves the times of yours. Right? How to handle different question types quickly. मेन आइडिया, सेंट्रल थीम का अगर आपको क्वेश्चन हैंडल करना है, रिलाई ऑन योर वन लाइन जस्ट फ्रॉम पास 1, एलिमिनेट ऑप्शंस दैट आर टू नैरो और मेरली एग्जांपल्स. फर्स्ट पैराग्राफ से ही आपको मेन आइडिया और सेंट्रल थीम पता चल जाएगी, तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ से कहीं और जाना ही नहीं है. इन्फ्रेंस अगर आपको पता लगाना है, इम्प्लाइड, आस्क मस्ट बी ट्रू. खुद से पूछो कि क्या ट्रू हो सकता है. पिक द ऑप्शन दैट इज लॉजिकली फोर्स्ड बाय द पैसेज, नॉट मेरली पॉसिबल. use negation if negating the option is still compatible with passage. It is not a must. Right? Detail factual अगर कोई question है, go to the paragraph you tagged and scan. Don't over interpret. Don't over interpret. Tone और attitude पता लगाना है, look for the attitude words and qualifiers. However, unfortunately, surprisingly, ये words होते हैं जो author की tone बताते हैं. Ironic words, tone में भी critical, right? तो ये सारे words को आपको identify करना है that what are these tone and the words that have been used by the author. Purpose, function, ask why is this the paragraph here? To give evidence, to rebut, to exemplify. Vocabulary in context, replace the word with your synonym test. Does it preserve sense? If unsure, narrow by context paragraph. Right? ये ही आपके 4-5 तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके आरसीज में. इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस आपके आते ही नहीं है. राइट? सो दैट इज व्हाई यू हैव टू सी दैट द मेन आइडिया, इन्फरेंस, डिटेल, टोन, पर्पस, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, इन सब का आप एक फटाक से स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ये आप अपनी स्क्रीन पे रख सकते हो कि इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे डील करना है. और अगर आपको आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है तो पूरी वीडियो शेयर कर देना, सो दैट दे ऑल्सो गेट टू नो हाउ टू टैकल द लॉन्ग पैसेजेस. लेट्स सी अ पैसेज, थोड़ा सा शॉर्टन पैसेज है, बट आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो. मेनी सिटीज आर अडॉप्टिंग अर्बन गार्डनिंग प्रोग्राम्स. सिटी ऑफिशियल्स क्लेम दैट दीज प्रोग्राम्स रिड्यूस फूड इनसिक्योरिटी. यहाँ पे हमें वाई पता चल गया. एंड इंक्रीज ग्रीन कवर.
क्रिटिक्स पे से, अब यहाँ पे हमें क्रिटिकल थिंकिंग पता चल गई कि क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं. से दीज इनिशिएटिव्स आर स्मॉल स्केल एंड डाइवर्ट फंड्स फ्रॉम सिस्टमैटिक वेलफेयर प्रोग्राम्स, कि सिस्टमैटिक वेलफेयर प्रोग्राम से फंड्स को दूर लेके जाया जा रहा है, ये ऐसा क्रिटिक्स बोल रहे हैं. डिस्पाइट क्रिटिक्स, पायलट स्टडी शो local participation improves dietary diversity and social cohesion. However, scaling remains a challenge because of land costs and governmental issues. तो हमें दिख रहा है कि critical thinking ज्यादा हो रही है, critics ज्यादा बात कर रहे हैं यहाँ पर in this one particular paragraph. Just urban gardening helps locally face but faces scale problems. Tone क्या है? कैजुअली ऑप्टिमिस्टिक है स्टार्टिंग में, ऑथर नोट्स बेनिफिट्स बट वांट्स स्केलिंग इश्यूज. तो लास्ट में जाते जाते थोड़ी सी क्रिटिकल हो गई है. P1 क्लेम्स, P2 क्रिटिक्स, P3 एविडेंस, P4 चैलेंज. यहाँ पे आपको सारी चीजें पता चल रही हैं. क्लेम क्या कर रहे हैं, क्रिटिक्स क्या है, एविडेंस क्या है और चैलेंज क्या है. ऑल दीज आर योर स्ट्रक्चर दैट यू मस्ट हैव टू सी. अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द मेन आइडिया? Benefits exist, but scaling limits impact. Choose option that says both benefits and challenges. ये आपका मेन आइडिया होगा, जिसमें आपको पहले ऑप्टिमिस्टिक टोन भी दिखी, फिर आपको क्रिटिकल अप्रोच भी दिखी. तो दैट इज हाउ यू विल चूज एन ऑप्शन जिसमें आपको बेनिफिट्स भी दिख रहे हैं और आपको चैलेंजेस भी दिख रहे हैं. दैट विल बी द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. Which weakens the author's argument? Evident that pilot benefits are not replicable or land costs makes it impossible. Choose option describing high land cost with failed pilot outcomes. Right? जहां पे हाईलैंड कॉस्ट की बात की गई थी, उससे एग्जैक्टली ऑथर के आर्ग्यूमेंट को वीकन करने के लिए आपको ऑपोजिट चीज बोलनी होगी. एंड दैट इज व्हाट हियर दे आर डूइंग. टोन क्या है? ऑप्टिमिस्टिक टोन थी, लेकिन उसके साथ साथ क्रिटिकल अप्रोच भी है. बैलेंस्ड, एलिमिनेट एक्सट्रीम पॉजिटिव नेगेटिव चॉइसेस. दिस शोज हाउ मैप प्लस प्रेडिक्शन क्विक एक्यूरेट आंसर्स. आप देख रहे हो एटलीस्ट 100 वर्ड्स का पैसेज ये भी था, राइट? नॉट 100, 70-80 वर्ड्स एटलीस्ट. सो दैट इज हाउ यू हैव टू solve the passage while you map it and then follow the follow-up questions. That is how you can tackle the long passages if you know the two-pass technique and if you know that how to move ahead with the questions without even looking at the options. This was my strategy how to tackle long English passages, जो आपको सिर्फ इंग्लिश में नहीं, आपके पांचों सेक्शंस में काम आने वाले हैं. लीगल में भी आप हर एक चीज में इस पर्टिकुलर चीज को, इस पर्टिकुलर टेक्निक को फॉलो कर सकते हो. नाउ टिल देन यू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये टेक्निक समझ आई या नहीं. एंड अगर कोई भी डाउट्स हैं तो जल्दी से पूछ लो. वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट. टिल देन iConta का क्रैश कोर्स लॉन्च हो गया है, जिसमें हम आपको ऐसे बहुत सारे पैसेजेस भी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, आपको स्क्रैच से पढ़ाने भी वाले हैं. इफ यू आर समबडी जिसने अभी तक अपनी क्लैट की प्रिपरेशन शुरू नहीं की है या फिर अभी भी बहुत अनश्योर हो अपनी प्रिपरेशन को लेके, देन द क्रैश कोर्स इज फॉर यू. डोंट वरी, क्रैश कोर्स में ये नहीं है कि सब कुछ क्रैश होने वाला है. क्रैश कोर्स का मतलब है अब आपको स्क्रैच से सब कुछ पढ़ाएंगे, आपको कोई भी चीजें मिस आउट नहीं होंगी. Till then, you have to check out the details on our website www.iconta.in/clat. All the very best for your preparation and I'll see you in the next one.